Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video, I will continue the chapter Deep Water. Alright, in my previous video, I completed the summary of the chapter and 2-3 paragraphs of the text. Means up to page number 25. 3 paragraphs were completed. Fine. So now begin from paragraph number I think it is 4th. With that he picked me up. Let's see. Chapter 3, Deep Water. Right. With that, he picked me up means with the words as the boy yelled, Y-E-L-L-E-D, yelled means shouted, and he said, "Hey, Skinny, hi Skinny, how would you like to be dubbed?" आप किस तरीके से डुबकी लगाना चाहोगे? With these words, the bruiser picked the narrator up and tossed him into the deep end. और उसने उसे डीप एंड की तरफ फेंक दिया. ठीक है. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. William Douglas landed in sitting position. He gulped water. Swallowed water means gulped water and went at once to the bottom of the pool. और एक बार जो है कहाँ पहुँच गया? पूल के ठीक बॉटम तक पहुँच गया. I was frightened but not yet frightened out of my wits. Means narrator was extremely scared. बुरी तरह से डरा हुआ था. But not yet frightened out of my wits means his wit was working. Alright, यानी उसकी अकल काम कर रही थी. On the way down, I planned when my feet hit the bottom. Yani when he was getting down and down, he planned that when his feet hit bottom, I would make a big jump, come to the surface. मैं जो है एक बड़ी जंप लगाऊंगा. Come to the surface, lie flat on it, और इस पर जो फ्लैट लेट जाऊंगा. And paddle to the edge of the pool, और जो है पैडल की हेल्प से, जो वाटर विंग्स थे उनकी हेल्प से, यानी पैरों को चला करके कहाँ आ जाऊंगा मैं? पूल के किनारे पर आ जाऊंगा. ठीक है. इट सीम्ड द लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90 बिकॉज ही वॉज अ नॉन स्विमर, सो द 9 feet सीम्ड टू बी लाइक 90 एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट. यानी उसके फीट जो है बॉटम को टच होते उससे पहले ही उसके लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, यानी उसके लंग्स जो है फटने के लिए क्या थे? तैयार थे. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. लेकिन जैसे ही नरेटर के पैर जो है बॉटम से टच हुए तो नरेटर ने वही किया जो उसने सोचा था. यानी उसने पूरी ताकत को जुटाया और पूरी ताकत लगा करके उसने ऊपर की क्या करी? जंप लगाई. आई इमेजिन आई वुड बॉब इन द सरफेस. आई इमेजिन मीन्स नरेटर फैंसी, उसने कल्पना की थी कि he would bob to the surface like a cork, कि वो जो है क्या करेगा? he would jump like a cork to the surface. cork is a bird that is found in अमेरिका, जो अमेरिका में पाया जाता है. ठीक है. Instead I came up slowly. इसके बावजूद नरेटर जो है बहुत स्लोली आया. यानी स्ट्रेटजी तो ये थी, उसे याद था, उसने इमेजिन किया था कि वो जो एक बॉब कॉर्क की तरह, यानी कॉर्क एक पक्षी होता है, उस पक्षी की तरह क्या करेगा? जंप लगाएगा और वो जो सरफेस पर आ जाएगा. बट आई केम अप स्लोली, यानी नरेटर जो बहुत स्लोली ऊपर की ओर आया. आई ओपन्ड माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर. नरेटर ने आंखें खोली बट ही सॉ नथिंग बट वाटर. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टाइंज. एक ऐसा पानी जिसकी कैसी होती है? डर्टी येलो टाइंज होती है. टाइंज होता है कलर, TINGE. right, and means color.
what are that dirty yellow times to it. I grew panicky. I reached up as if grab a rope. Narrator became panicky and he reached up as if he wanted to grab a rope and my hands clutched only at water. क्या आया बातों में सिर्फ पानी आया. I was suffocating. I tried to yell. Narrator was feeling suffocation and he wanted to shout, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water. फिर जो है नरेटर की आंखें और नाक जो है पानी से बाहर आए, but not my mouth. but नरेटर का माउथ बाहर नहीं आया. It means देखिए कि when his feet touched the bottom, तो he came up slowly. ठीक है, उसकी आंखें बाहर आ गई. He wanted to shout but nobody heard him. Only water heard. Alright, किसी ने सुना नहीं. वो सफोकेट हो रहा था, चिल्लाने की कोशिश कर रहा था. देन उसकी आंखें बाहर आ गई. देन नोज बाहर आ गई. बट हिज माउथ डिड नॉट कम आउट. लेकिन उसका माउथ जो बाहर नहीं आया. फाइन. I flailed at the surface of water, swallowed and choked. Flailed at the surface of water means to move one's arms. To move one's arms and leg around the water. आपने देखा होगा, आपको मूवमेंट करके बता देता हूँ. एक्चुअली मैं whenever I teach this chapter, I remember my own incident. यानी मुझे मेरी खुद की घटना याद आ जाती है, because the same thing happened with me also. So when you move your arms like this, we call it flail. ठीक है. So narrator flailed the surface of the water, swallowed. He gulped, G-U-L-P-E-D. Swallowed means gulped water and choked. और उसका थ्रोट क्या हो गया? चौक हो गया. I tried to bring my legs up. नरेटर ने अपनी पैरों को ऊपर लाने की भी कोशिश की थी, but they hung as dead weights. लेकिन वो ऐसे लटक गई मानो कि dead weight हो, पैरालाइज्ड हो गई, एंड रिजिड, और बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबल सी हो गई. रिजिड मीन्स हियर इनफ्लेक्सिबल. अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर. नरेटर को एक ग्रेट फोर्स जो अंडर वाटर खींच रहा था. एक्चुअली में कोई ग्रेट फोर्स नहीं खींचता. व्हेन यू डू नॉट नो स्विमिंग, इट सीम्स दैट समबडी इज पुलिंग यू इनसाइड और अंडर वाटर. ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज जो है पानी के अंदर खींच रही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर जिनको स्विमिंग आती है तो उनको तो कोई खींचता ही नहीं है. सो बस वही है. I screamed, but only the water heard me. Narrator shouted, but only the water heard him. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. यानी नरेटर ने फिर से जो अपनी जर्नी को शुरू कर दिया. यानी कि अगेन ही वॉज ड्रॉनिंग. वो क्या हो रहा था? डूब रहा था. ये होता है. देखिए, फर्स्ट टाइम जब उसके पैरों ने बॉटम टच किया, he came up slowly. Alright, his eyes came, his nose came, but his mouth did not come. If he knew swimming, he could save himself. Alright, खुद को बचा सकता था. But he did not know swimming, so he again started getting down and down. I struck at the water as I went down. यानी वो फिर से स्ट्राइक करने लगा, फिर से पानी की सरफेस को पीटने लगा. As he was getting down, expending my strength as one in a nightmare fights with an irresistible force. जैसे कि कोई रात के डरावने सपने में एक irresistible force से लड़ता रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से irresistible होता है. too strong to be resisted. यानी एक ऐसी पावर जो बहुत ज्यादा कैसी होती है? स्ट्रांग होती है, जिसका हम क्या नहीं कर सकते? रिजिस्ट नहीं कर सकते. ठीक है. रिजिस्ट फिजिक्स का भी वर्ड है, आप समझ सकते हैं आराम से. आपने रेजिस्टेंस पावर पढ़ी होगी. ऑलराइट, सो बस वही है. I had lost all my breath. My lungs ached. My head throbbed. Narrator's lungs were aching and his head was throbbing. क्या हो रहा था? हेड में थ्रॉबिंग हो रही थी, यानी धड़क रहा था. ठीक है. I was getting dizzy. Narrator was feeling giddy. Dizzy means होता है चक्कर आना.
वी कॉल इट गिडी। ठीक है, एलिवेटर को क्या आ रहे थे, चक्कर आ रहे थे, एलिवेटर का सर चक्कर खा रहा था। अगर आपसे कोई ये पूछे कि अगर हिंदी में कोई सेंटेंस है तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, हाउ विल यू ट्रांसलेट, आई एम गेटिंग डिजी। ठीक, और ऐसे कैसे, टाइम फीलिंग डिजी, डिजी और गिडी वो था सेम। ठीक है, तो कोई एक वर्ड बोल दो। सो नरेटर वाज गेटिंग डिजी बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, बट ही रिमेंबर द स्ट्रैटेजी। व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या थी, कैन एनीवन टेल मी। स्ट्रैटेजी वाज दैट व्हेन हिज फीट टच द बॉटम, जब उसके पैर क्या करेंगे, बॉटम को टच करेंगे, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। यानी मैं क्या करूंगा, मैं जो है जंप लगाऊंगा कहां से, बॉटम से, पूल के बॉटम से, लाइक अ कॉर्क, कॉर्क की तरह। ठीक है, टू द सरफेस, आई वुड लाइक लेट ऑन वाटर, पानी पर लेट जाऊंगा, अंडरलाइन कर लेना इसको। ठीक है, ऑन द वाटर, strike out with my arms and thrash with my legs, then I would get to the edge of the pool and be safe. This was the strategy. Again listen, the strategy means when my feet hit the water or touch the water, touch the bottom, sorry, water nahi, when my feet touch the bottom of the pool, I would make a jump like a cork, I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs, then I would get to the edge of the pool and be safe. This was the strategy made by the narrator. I went down endlessly, I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow. यानी क्या हुआ, नीचे जा रहा था, ओपन माई आईज में अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, यानी उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया सिवाय और सिवाय येलो कलर के वाटर के। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, यानी ऐसा पानी जिसमें से कोई किसी चीज को देख नहीं सके। ठीक है, एंड देन sheer stark terror, then sheer stark terror, sheer मीन्स देखिए, sheer मीन्स होता है कंप्लीट, alright, stark means utter, and then sheer stark terror seized me, gripped me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. यानी एक ऐसा टेरर जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो, जिसके बारे में किसी का अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। ठीक है, खास करके उन लोगों के लिए भयानक होता है जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो। I was shrieking underwater, narrator was shouting underwater, I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear, even the scream in my throat were फ्रोजन। अब तो इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि उसके थ्रोट के अंदर जो स्क्रीम थी वो भी क्या हो चुकी थी, जम चुकी थी, यानी क्या वो उसकी स्क्रीम भी बाहर उसके गले से नहीं आ रही थी, बिकॉज वो थक चुका था बहुत ज्यादा। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, यानी सिर्फ और सिर्फ उसकी थम्पिंग इन द हेड एंड बीटिंग इन द हार्ट वाज टेलिंग दैट ही वाज स्टिल अलाइव, वो अभी भी जिंदा था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, और फिर जस्ट उस टेरर के बीच में ही केम अ टच ऑफ रीजन, केम अ टच ऑफ रीजन, यानी उसे हल्की सी क्या नाम है एक टच ऑफ रीजन आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, यानी ही रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, ही रिमेंबर द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या थी कि व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ही शुड मेक अ जंप, ठीक है, एंड reach to the surface, lie flat on it, and with the help of the paddle he should reach on the edge of the pool and be safe. This was the strategy he remembered.
ठीक है, उसे अपनी स्ट्रेटजी अच्छे से याद आ गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, यानी फाइनली उसने जो टाइल्स को अपने अंदर फील किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, टोज ऐसे चल रही थी मानो कि वो टाइल्स को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, नरेटर मेड अ जंप विद द स्ट्रेंथ दैट ही हैड, यानी जितनी ताकत थी वो पूरी ताकत से उसने जो है जंप लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी जो उसके चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स, मैं जो है किसकी ढूंढ रहा था, रोप्स को ढूंढ रहा था, लैडर्स को ढूंढ रहा था। लैडर्स यानी सीढ़ी होती है, क्या होती है, सीढ़ी, ठीक है, जो लकड़ी की बनी हुई होती है। वाटर विंच नथिंग बट वाटर, ही कुड सी नथिंग बट वाटर। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, अ वॉल्यूम ऑफ येलो वाटर हेल्ड द नरेटर। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, भयानक जो डर था ना, हाइड्रोफोबिया था, उसने नरेटर के ऊपर और ज्यादा मजबूत पकड़ बना ली थी। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, नरेटर शुक एंड ही ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, डर के मारे कांप गया था। माई आर्म्स वुडंट मूव, अब तो आर्म्स भी उसकी चल नहीं पा रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। ही वांटेड टू कॉल फॉर हेल्प, ही वांटेड टू कॉल फॉर हिज मदर, बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। And then strangely, there was light. There was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were, my nose was almost out too. यानी third time again he means second time, sorry not third time, second time again he was coming out of water. वो फिर से जो पानी से बाहर आ रहा था, उसे लाइट दिखाई दे रही थी, उसकी आंखें बाहर आ गई थी। येलो ग्लो ऑफ वाटर he could see, at least his eyes were out of water, his nose was almost out too. Then I started down a third time, but unfortunately again he started getting down and down third time. I sucked for air and got water. He wanted to get breath, but he got water. यानी वो सांस लेना चाहता था, लेकिन क्या निकल गया, पानी को निकल गया। आपने देखा होगा कि जब भी हम पानी के अंदर सांस लेने की कोशिश करते हैं, वी गेट वाटर। द सेम थिंग हैपेंड विद द नरेटर, ही वांटेड टू गेट ब्रेथ बट ही गॉट वाटर। The yellowish light was going out. Now, the yellowish light that he could see earlier when he was going first time inside the water and second time when he was getting inside the water, he could see the yellow light of the water, but now he was not able to see that yellow light of the water. You can understand that he was now becoming unconscious. ठीक है, वो क्या हो रहा था, अनकॉन्शियस हो रहा था। और जब भी कोई अनकॉन्शियस होता है तो उसे देखना बंद सा हो जाता है, उसके सामने क्या छा जाती है, ब्लैकनेस छा जाती है, काले मासी छा जाती है। द सेम थिंग वॉज with the narrator. Then all efforts ceased. Now he stopped each and every effort. I relaxed, even my legs felt limp. Narrator felt relaxed and his limb felt and his legs felt limp. यानी उसकी legs ने कैसा फील किया, limp फील किया, ठीक है, यानी lacking energy. Limp means lacking energy. And the blackness swept over my brain. It wiped out fear. Now, his fear was wiped out. अब उसका fear क्या हो गया था, खत्म हो चुका था। It wiped out terror. There was no more panic. अब तो कोई डर ही नहीं लग रहा था, because he became unconscious. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. शांतिजनक था सब कुछ. Nothing was to be afraid of. डरने की कोई बात ही नहीं थी. This is nice. To be drowsy यानी अच्छा लग रहा है, नींद से आ रही है. To go to sleep. No need to jump. Too tired to jump, इतना थक चुका था कि वो जंप नहीं लगा सकता था। It's nice to be carried gently, और उसे इतना भी याद है कि उसे बड़े ही जेंटल तरीके से जो है ले जाया जा रहा था। To float along in space and while he was carried gently, he was being carried gently, he was feeling that he was floating in the space.
tender arms around me means people were touching him with the arms, so he felt the arms, tender arms like his mother. Alright, now I must go to sleep. अब उसे सोच रहा है कि अब तो मुझे सो जाना चाहिए. मीन्स ही वॉज इन अनकॉन्शियस कंडीशन, बट थोड़ी मोड़ी चीजें उसे फील सी हो रही हैं. ठीक है. अच्छा, ये फील क्यों हो रही थी? बिकॉज पीपल नियर द पूल दे सेव्ड हिम, उन्होंने उसे बचा लिया था. एंड दे वर कैरिंग हिम टू द लॉकर रूम, वो उसे कहाँ लेकर जा रहे थे? लॉकर रूम की ओर लेकर गए थे. जब लॉकर रूम की ओर लेकर जा रहे थे तब ये सारी चीजें उसे फील हो रही थी कि अच्छा मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो स्पेस में फ्लोट कर रहा हूँ, और क्या नाम है मेरी माँ के जैसी टेंडर आर्म्स हैं मेरे चारों तरफ और मेरे शरीर पर, जैसे मेरी माँ हाथ फेरती थी वैसे ये हाथ लगा रहे हैं. आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन. नैरेटर क्या हो गया? स्टेट इन विच वन इज नो लॉन्गर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, यानी वो विस्मृति की अवस्था में चला गया. मीन्स द नैरेटर बिकेम अनकॉन्शियस. कैसा हो गया था? अनकॉन्शियस हो गया था. ऑब्लिवियन का मतलब भी वही होता है, द स्टेट इन विच वन इज नॉट aware of what is happening. अच्छा, the next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. यानी अगली बार जब उसे होश आया था, when he became conscious, he found himself that he was lying on the edge of the pool. He was lying beside the pool on his stomach and he was vomiting. और क्या कर रहा था? वो vomiting कर रहा था. ठीक है, पूल के बगल में लेट करके अपने पेट के बल और वॉमिटिंग कर रहा था. आपने देखा होगा when someone gulped water and when someone drowned in the water, the person is made to lie flat and उसके ऊपर उसे हिलाया डुलाया जाता है पेट के बल लेटा करके, so that the water he gulped could come out, वो बाहर आ सके. The same thing was going on with the narrator. He was lying flat on his stomach beside the pool and vomiting. The chap that threw me, the chap that threw me, chap का मतलब होता है boy. ठीक है. The chap that threw me inside the pool was saying, but I was only fooling. मैं तो क्या कर रहा था? मैं तो बस मजाक कर रहा था. क्या कर रहा था? मजाक कर रहा था. फूलिंग का मतलब यहाँ पर मजाक करना है. Someone said the kid nearly died. किसी ने कहा था अगर ये तो बिल्कुल मरने के कगार पर है. बी ऑल राइट, नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. चलो अब इसे हम कहाँ पर ले चलें? लॉकर रूम में ले चलें. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम आफ्टर दैट इंसिडेंट. अब देखिए, आफ्टर दिस इंसिडेंट द नरेटर डेवलप्ड हाइड्रोफोबिया. उसे क्या हो गया था? हाइड्रोफोबिया हो गया था. सो दिस वाज द मिस एडवेंचर. मिस एडवेंचर आपकी पूरी हो चुकी है. एंड आफ्टर दैट मिस एडवेंचर नरेटर वेंट होम. ठीक है. सेवरल आवर्स लेटर ही वेंट होम. आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग. नरेटर क्या हो गया था? वीक हो गया था. एंड ही वॉज ट्रेम्बलिंग, वो क्या कर रहा था? कांप रहा था. आई शोक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बैक. यानी व्हेनेवर द सेम थिंग अकर्ड इन फ्रंट ऑफ हिज आईज. ठीक है, जब सेम घटना जो है उसे विजुअलाइज होने लगी तो वो क्या हो गया? कांपने लग गया डर के मारे. I couldn't eat that night. इतना भय बैठ गया था, इतना हाइड्रोफोबिया डेवलप हो चुका था उसके अंदर that he could not eat that night for days. A haunting fear was in my heart. That haunting fear was in the heart of the narrator for days. The slightest exertion upset me. The slightest work upset the narrator. यानी थोड़ा मोड़ा काम भी नरेटर को क्या कर देता था? अपसेट कर देता था, यानी उसे परेशान कर देता था. Making me wobbly in the knees and sick to my stomach. It made him weak in the knees and disease to his stomach. यानी इससे क्या होता था कि इसके घुटने और पैर कमजोर पड़ जाते थे और ऐसा लगता था कि वो बीमार हो गया है. Whenever he remembered that hydrophobia, that misadventure, जब भी वो इस मिसएडवेंचर को रिमेम्बर करता था तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी. I never went back to the pool. Means after getting hydrophobia, after developing hydrophobia, the narrator never went to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. यानी जब भी वो कर सकता था नरेटर जो है पानी को अवॉइड करता था. कोई भी करेगा, ऑब्वियसली करेगा. If the same thing happened with you, you people will not go there. आप जाओगे ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता. A few years later when I came to know the waters of the Cascades, यानी कुछ सालों के बाद में जब मुझे कैस्केड्स के वाटर के बारे में पता चला था,
एक्चुअली में कैस्केड्स होते हैं झरने टाइप के। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो मैं उनमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई वेंट टू द वाटर ऑफ कैस्केड्स वेदर आई वॉज वेटिंग द टाइटन, भले ही मैं जो है टाइटन रिवर में क्या कर रहा हूँ, वॉकिंग इन द शैलो वाटर, यानी भले ही मैं टाइटन रिवर के उथले पानी में जो है वॉकिंग कर रहा हूँ। वेटिंग का मतलब होता है वॉकिंग करना पानी के अंदर, थोड़े थोड़े पानी के अंदर जब छप छप करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड वेटिंग। टाइटन रिवर और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गॉट रॉक्स, या फिर मैं गॉट रॉक्स के जो वार्म लेक है उसमें जो है नहा रहा होता। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, यानी द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, जो टेरर जिस टेरर ने मुझे पूल के अंदर सीज कर लिया था, ग्रिप कर लिया था, पकड़ लिया था, डरा दिया था, यानी वही मिस एडवेंचर वाली बात कर रहा, वही टेरर क्या हो जाता था, वापस आ जाता था। इट वुड टेक अ पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, यानी होता क्या था कि वही हाइड्रोफोबिया जो वापस आ जाता और मुझे जकड़ लेता था और मेरे ऊपर पूरी होल्ड बना लेता था, ठीक है, मेरे लेग्स जो पैरालाइज हो जाते थे और जो है आई सी हॉरर वुड ग्रैब हिज हार्ट, उसके हार्ट को क्या कर लेता था, एक तरीके से जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, यानी ये जो प्रॉब्लम थी वो चलती रही नरेटर के साथ में जैसे वर्ष बीतते चले गए। इन कनूज ऑफ मेन लेक्स, यानी भले ही वो कनूइंग कर रहा था मेन लेक्स में, फिशिंग फॉर लैंडलॉक सामन, लैंडलॉक सामन इज अ काइंड ऑफ फिश, ठीक है, वेराइटीज हैं फिश की। बास फिशिंग इन द न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के अंदर बास फिशिंग करते समय, ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्ट्रिक्ट एंड मेटेरियस इन ऑरिगोन, फिशिंग फॉर सामन ऑन द कोलंबिया, यानी सामन फिशिंग करते समय कोलंबिया में, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, वेयर एवर आई वेंट द haunting fear of the water followed me, यानी wherever the narrator went for fishing or canoeing, the haunting fear came back and it seized him. It ruined my fishing trips, यानी ये जो हाइड्रोफोबिया था वो क्या कर देता था, देखिए it ruined his fishing trips, canoeing, swimming, and बोटिंग, इन सारी चीजों को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता था। फिशिंग ट्रिप deprived me of the joy of canoeing, बोटिंग एंड स्विमिंग, तो ये चीजें हैं जिस तरीके के, यानी इन चीजों को ये हाइड्रोफोबिया क्या कर देता था, रुइन कर देता था, यानी बर्बाद कर देता था। I used every way I knew to overcome this fear. Narrator used each and every way what he knew to overcome this hydrophobia, but it held me firmly in its grip. लेकिन उसने पूरी तरह से अपनी ग्रिप में जकड़ रखा था। Finally, one October I decided to get an instructor and learn to swim. Finally, देखिए narrator ने क्या किया कि on October 1 he decided to have an instructor October 1, the narrator decided to hire the instructor and learn to swim. Fine. अच्छा, narrator इंस्ट्रक्टर क्या करता था, 5 days in a week and 1 hour every day क्या देता था, उसको ट्रेनिंग देता था। I went to a pool and practiced 5 days a week.
मैं पूल पर जाता और 5 दिन प्रैक्टिस करता एक वीक में, एन आवर ईच डे। बताइए, 5 days in a week and 1 hour each day। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, वो क्या करता था, एक बेल्ट लगा देता था उसके चारों तरफ। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, यानी बेल्ट से क्या अटैच कर दी जाती थी, एक रोप अटैच कर दी जाती थी, दैट वेंट थ्रू द पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो किससे होकर के चलती थी, एक ओवरहेड केबल से होकर के चलती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड द एंड ऑफ द रोप टू बी हेल्ड बाय द इंस्ट्रक्टर, यानी एक एंड को तो उसने उसकी कमर से बांध दिया, ठीक है, जो बेल्ट लगाई थी उसके अंदर उससे बांध दिया, और दूसरे एंड को जो इंस्ट्रक्टर ने पकड़ लिया था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और पूल के चारों तरफ इधर से उधर होते रहते थे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, यानी हर एक ट्रिप पर पूल के जब एक ओर से दूसरी ओर जाता था तब सेम काइंड ऑफ पैनिक सीज्ड द नैरेटर, ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन टू द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माय लेग्स फ्रोज, यानी हर बार क्या होता था कि नैरेटर इंस्ट्रक्टर क्या करता था, वो उसे लूज कर देता था, क्या करता था, रिलैक्स कर देता था अपनी होल्ड को, और जैसे वो पानी के अंदर जाता था तो वही जो डर था ना, हाइड्रोफोबिया था, वो जो वापस आ जाता और उसकी लेग्स क्या हो जाती है, फ्रोज हो जाती हैं, जम जाती हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, यानी इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, यानी टेंशन के 3 महीने के बाद टेंशन जो क्या होने लग गई थी, स्लैक होने लग गई थी, यानी कि 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद में टेंशन थोड़ी सी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। देखिए मीनिंग देख लो, स्लैक मींस लेसन, LESSEN है, नॉट LESSON, राइट, यानी 3 महीने बाद जो टेंशन कैसे होने लग गई, कम होने लग गई थी। Then he taught me to put my face under water and exhale, to raise my nose and inhale, means after that the instructor taught the narrator inhale and exhale. I repeated the exercise hundreds of times. Narrator repeated the exercise of exhaling and inhaling hundreds of times, but bit by bit, I said part of the panic that seized me when my head went underwater. Bit by bit, यानी slowly and gradually, the narrator had removed the hydrophobia that had seized him when he put his head. वो अपने सिर को पानी के अंदर, फेस को पानी के अंदर डालता था, वो भय जो है, हाइड्रोफोबिया जो उसके दिमाग में आ जाता था, उस हाइड्रोफोबिया को नैरेटर ने धीरे धीरे करके क्या कर दिया, रिमूव कर दिया था, यानी रिमूव करना शुरू कर दिया था एक तरीके से, यानी वो हट रहा था। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्टर हेल्ड the narrator at the side of the pool and had me kick with my legs, and he made him to kick his legs, और उसने उसको क्या कहा, पैरों को चलाने के लिए कहा। For weeks I did just that at first. For weeks I did just that, यानी जैसा उसने कहा वैसा ही किया था। At first my legs refused to work, यानी initially narrator's legs refused to work as he was not habitual of doing all that, but they gradually relaxed. gradually क्या हो गए थे, habitual हो गए थे। and finally I could command them, अब वो उन्हें कमांड कर सकता था, यानी जैसे चाहता वैसे उन्हें मूव करा सकता था। the piece by piece he built a swimmer, means one by one, एक एक करके, one by one the instructor built Douglas a swimmer, उसने उसे क्या बना दिया, स्विमर बना दिया। and when he had perfected each piece, when the instructor taught him and made Douglas perfect in each piece, he made them integrated, means he included each and every step of swimming into one integrated. Alright, and in the well, here is to you, हाँ देखो ये रहा मैं तुम्हारे लिए, look for another length of the pool, और मैं जो है एक बार और जो है स्विमिंग पूल के वन एंड से लेकर के दूसरे एंड तक जो है स्विमिंग करते हुए चला जाता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, देखिए
अक्टूबर में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, अप्रैल तक इंस्ट्रक्टर ने दी, फाइन। और इसके बाद में ये कब तक चलता रहा, जुलाई तक। ये क्या थी, सेल्फ प्रैक्टिस। क्या थी ये, सेल्फ प्रैक्टिस थी, फाइन। तो देखिए दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, नरेटर अभी भी जो सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट द ओल्ड टेरर हैड, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, यानी नरेटर इस बात के बारे में भी श्योर नहीं था कि क्या कंप्लीट टेरर उसे छोड़ चुका है, यानी क्या उसका टेरर अब निकल चुका था, वो श्योर नहीं था, इसीलिए वो जो और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता था। अच्छा, इस चीज से आप ये चीजें समझ सकते हैं दैट टिल द टाइम यू गेट कंप्लीट परफेक्शन यू शुड नॉट लीव प्रैक्टिस, यानी जब तक कि आपको किसी भी चीज की कंप्लीट, किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं हो जाती, पूरी कमांड नहीं बन जाती, यू शुड नॉट लीव योर प्रैक्टिस, यू शुड नॉट लीव द वर्क इन बिटवीन, आपको जो काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। बिकॉज यू नो द इंस्ट्रक्टर टॉट इन स्विमिंग, सॉरी हाँ ठीक है कोई नहीं, इंस्ट्रक्टर ने क्या की ट्रेनिंग दी थी, स्विमिंग सिखाई अक्टूबर 1 से लेकर अप्रैल तक की, बट ही वॉज नॉट श्योर, सो ही स्टार्टेड सेल्फ प्रैक्टिस अप टू जुलाई, एंड अगेन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज he was not satisfied because the tiny vestiges of the old terror would return, ठीक है, वो जो वापस आ जाती थी, इसीलिए वो जो और प्रैक्टिस करना चाहता था। एक्चुअली में ही वांटेड टू बिकम परफेक्ट, वो परफेक्ट बनना चाहता था। जब परफेक्ट बनना है तो आपको बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सो ही वॉज डूइंग मोर एंड मोर प्रैक्टिस, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था। द सेम थिंग इज विद इन आवर रियल लाइफ ऑल्सो। ये चैप्टर एक्चुअली में एक मैसेज है रीडर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फॉर ईच एंड एवरी वन, दैट वी शुड नॉट लीव द प्रैक्टिस, ठीक है, वी शुड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, हमें हार नहीं माननी चाहिए, वी शुड कीप ऑन फाइटिंग, वी शुड कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क टिल वी गेट परफेक्शन इन ईच एंड एवरीथिंग। जब तक कि हमें हर चीज में परफेक्शन नहीं मिले तब तक हमें कंप्लीटली और कंटिन्यूअसली क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो the thing that I told you in the previous video, that if you are facing any problem in any field of life, you must devote yourself to that field of life and practice a lot. If you are practicing cricket, अगर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप स्विमिंग ही कर रहे हैं, whatever you are doing, you should do hard work, determination, dedication, perseverance, all lead towards success. किसकी तरफ ले जाते हैं, सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस, इन द बिगिनिंग द नरेटर डिड नॉट नो स्विमिंग, he developed hydrophobia at the age of 10 or 11 years, but he did not accept defeat, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और हार नहीं मानी, so one day now he is going to become the perfect swimmer, अब वो perfect swimmer बनने जा रहा है। So you can imagine, nothing is impossible, nothing is difficult in this life, कुछ भी difficult नहीं है, we can do whatever we want. So thank you students, it's enough for the day, bye bye.